Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Sequence and Series. Now we'll start with exercise 4.3. Yes, over here one of the concept is sum to infinity, and sum to infinity का condition है, yes, I'll write one general formula over here. This is S infinity का, it is A upon 1 minus R, but ये condition applicable only if modulus R is less than 1. Only in case modulus R is less than 1. And अगर modulus R greater than या equal to 1 है, we say sum to infinity does not exist. So exist कब करेगा? जब modulus R का value is less than 1, and अगर exist करता है तो ये उसका formula है sum to infinity का. So now we start with exercise 4.3 का question number 1, which says determine whether the sum to infinity of the following GPs exist. If exist, find it. So here we have the first sub question as 1 by 2, comma 1 upon 4, comma 1 upon 8, comma 1 by 16, comma dot 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 dot. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा here T1 is equal to 1 by 2, T2 is equal to 1 by 4, T3 is equal to 1 by 8, T4 is equal to 1 by 16. Yes, since ये GP है, इसका मतलब यहाँ पे R is equal to T2 upon T1 आ जाएगा. Yes, यहाँ पे R is equal to T2 मतलब 1 upon 4 upon में 1 by 2 आ जाएगा. So here we have 1 by 4. Yes, ये divide अगर into बना तो reciprocal, तो 2 by 1. Yes, answer आ जाएगा. Yes, 2 1s and 2 2s. तो ये हो गया 1 by 2. This is my value of R. अच्छा, R का value half आया. अच्छा, what is modulus of R? Half, मतलब 1 से कम है. So modulus R is also equal to क्या आएगा? Half. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा since modulus of R is less than 1, therefore S infinity is equal to A upon 1 minus R. And T1 जो है that itself is what? Value of A. So यहाँ पे we can write S infinity is equal to, ये हो जाएगा A के जगह पे half upon 1 minus half. So ये हो जाएगा 1 upon 2 upon में 2 minus 1 upon 2, which is half divided by half. So overall answer is what? 1. So यहाँ पे sum to infinity exist भी करता है and उसका value is equal to 1. ये हो गया first sub question. Now we have the second sub question over here. Yes, second sub question states it is 2 है, comma 4 by 3, comma 8 upon 9, comma 16 upon 27, comma dot 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 dot. So यहाँ पे हम लिखेंगे here T1 is equal to 2, T2 is equal to 4 upon 3, T3 is equal to 8 by 9, T4 is equal to 16 upon 27. So यहाँ पे we can write R जो है that is T2 upon T1. So that is equal to, ये हो जाएगा 4 by 3 divided by 2. अच्छा, यहाँ पे न्यूमरेटर में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, वैसे डिनोमिनेटर में खाली न्यूमरेटर पार्ट है. यस, तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब मैं क्या लिखूंगा 1. So that ये हो जाएगा 4 by 3. यस, ये डिवाइड बन जाएगा into, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 by 2. यस, एंड इसको सॉल्व किया 2 1s 2 2s, तो 2 by 3 आ जाएगा. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ R. एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉड्यूलस R इज ऑल्सो इक्वल टू अभी भी 2 by 3. एंड इसका मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस मॉड्यूलस R इज लेस देन 1, तो देयरफॉर सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट. एंड ये एग्जिस्ट करता है तो उसका वैल्यू जो है वो है A अपॉन 1 माइनस R. सो अकॉर्डिंग टू दैट A का वैल्यू क्या है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ A? T1 का जो वैल्यू है वो, तो वो 2 हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 2 by 3. तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन 3, ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 by 3. अच्छा, इधर न्यूमरेटर पार्ट में खाली एक ही टर्म है एंड डिनोमिनेटर में 2 टर्म है. So I will write this 2 also as 2 upon 1 divided by 1 by 3. So this becomes 2 upon 1
यस ये डिवाइड को अगर इनटू बनाया तो ये हो जाएगा 3/1 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या आएगा 6. सो सम टू इंफिनिटी का वैल्यू क्या आ गया 6. सो ओवर हियर द फर्स्ट एंड द सेकंड सब क्वेश्चन इज डन. वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. Now we'll start with question number 1, sub question 3. Yes, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है it is -3 है, comma 1, then it is comma -1/3, comma 1/9, comma dot 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 dot. Yes, ये वैल्यू दिया है. यहाँ पे मैं लिखूंगा here t1 is equal to a is equal to -3, t2 is equal to 1, t3 is equal to -1/3, t4 is equal to 1/9, r is equal to t2 upon t1 हो जाएगा which is equal to हो जाएगा 1 upon -3 which is -1/3 हो जाएगा. yes, ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट r. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा r का वैल्यू ये है, मॉड्यूलस r विल बिकम मॉड्यूलस ऑफ 1/3. yes, so मॉड्यूलस r is equal to 1/3 हो जाएगा. so ये जो मॉड्यूलस वैल्यू आया this is less than 1, therefore sum to infinity exists. therefore s infinity is equal to a upon 1 minus r. yes, a का वैल्यू क्या है -3 upon 1 minus of -1/3. so based on this ये हो जाएगा s infinity is equal to ये हो गया -3 upon ये हो जाएगा 1, ये माइनस ऑफ माइनस ये बन जाएगा प्लस 1/3. इसको सॉल्व किया -3 अपॉन ये हो जाएगा 3 + 1/3. सो -3 अपॉन 4/3. यस, इधर डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, न्यूमरेटर में भी 2 टर्म के हिसाब से ही लिखूंगा. तो ये लिखा -3 अपॉन 1 एंड देन वी कैन राइट -3/1. यस, ये डिवाइड को अगर इनटू लिखा तो इसका रेसिप्रोकल, सो 3/4. सो दिस बिकम्स -9 अपॉन 4. ये हो गया s infinity का वैल्यू. So here the third sub question is done and now we start with the fourth sub question which is 1/5 है, comma -2/5, comma 4/5, comma -8/5, comma 16/5, comma dot 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 dot. so यहाँ पे मैं लिखूंगा here t1 is equal to a is equal to 1/5, t2 is equal to -2/5, t3 का वैल्यू है 4/5, t4 का वैल्यू है 16 सॉरी -8/5, t5 का वैल्यू है 16/5. सो r is equal to t2 upon t1 हो जाएगा. So this becomes -2/5 divided by 1/5. ये हो जाएगा -2/5 into ये हो जाएगा 5/1. So this is -2. So यहाँ पे r का वैल्यू जो है वो आ गया -2. So we write over here modulus r is equal to modulus of -2 which is 2 हो जाएगा. So modulus r is equal to 2. So यहाँ पे मैं लिखूंगा modulus r is not less than 1. ए मतलब ये greater than 1 हो गया. greater than 1 हो गया तो यहाँ पे मैं लिखूंगा therefore sum to infinity does not exist. इस मॉड्यूलस r का वैल्यू 2 है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होता है तो सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता है. दैट्स द रीजन हमने लिखा देयरफॉर सम टू इंफिनिटी डज नॉट exist for this condition, this sequence. So with this, the third and fourth sub question is done. We make a note of this part.
We'll start with the next question, that is question number 3, 4.3 का third sum. If the common ratio of a GP is 2/3 and sum of its terms to infinity is 12, find the first term. Yes, इसका मीनिंग होता है R is equal to 2/3 क्योंकि कॉमन रेशियो बोला है, एंड सम ऑफ इट्स टर्म टू इंफिनिटी मतलब S इंफिनिटी का वैल्यू दिया है which is 12. Yes, इसका मीनिंग होता है S इंफिनिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज A/1 माइनस R, एंड अगर A का वैल्यू मिल गया वी गेट से फर्स्ट टर्म मिल गया क्योंकि फर्स्ट टर्म दैट इज T1 इज इक्वल टू A होता है. सो यहां पे S इंफिनिटी के जगह पे 12 आ जाएगा, A तो एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3. सो हियर वी हैव 12 is equal to A upon, ये हो जाएगा 3 minus 2 upon 3. 12 is equal to A upon 1/3. 12, yes, ये upon वाला टर्म यहाँ पे गया तो into हो जाएगा 1/3. 3 1 and 3 4 जा. So 4 is equal to A, we can say therefore A is equal to क्या आ जाएगा 4. So A मिल गया तो therefore I can say first term is 4. So with this question number 3 is done. Now we start with the next question over here, that is question number 4. So यहाँ पे fourth sum में दिया गया है, if the first term of a GP is 16 and sum of its term to infinity is 176 upon 5, find the common ratio. Yes, मतलब यहाँ पे first term मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा T1 is equal to A is equal to 16 दिया है and sum to infinity is 176 upon 5 बोला गया है. Find the common ratio मतलब R पूछा गया है. So here we write it as S infinity is equal to A upon 1 minus R आ जाएगा. Yes, क्योंकि sum to infinity exist कर रहे हैं तभी तो ये वैल्यू मिलेगा. So S infinity is equal to A upon 1 minus R, इधर आ जाएगा 176 upon 5. A तो 16 आ जाएगा upon 1 minus R आ जाएगा. So ये 1 minus R यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा 16 into 5 upon 176. So 1 minus R हो जाएगा. Yes, अभी मुझे इतना समझ में आता है, ज्यादा डायरेक्ट भी कर सकता हूँ बट 4 के टेबल से जाएंगे तो 4 4 जा एंड 4 यहाँ पे 4 जा, ये 1 कैरी, ये 4 जा, 4 1 जा एंड 4 11 जा. सो ये हो जाएगा 5/11. सो यहाँ पे 1 माइनस R इज इक्वल टू 5/11 है तो 1 माइनस 5/11 इज इक्वल टू R हो जाएगा क्योंकि ये माइनस R यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव R हो गया. अब यहाँ पे 11 माइनस 5/11 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू R. ये हो जाएगा 6/11 इज इक्वल टू R. सो वी से देयरफॉर R इज इक्वल टू 6/11. Yes, so with this question number 3 and question number 4 is done, we make a note of this part. We'll start with question number 2. Express the following recurring decimals as a rational number. मतलब यहां पे मुझे फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया गया है as 0.32 एंड 32 के ऊपर बार साइन है. यस, द मीनिंग ऑफ दिस इज ये जो नंबर रिकरिंग नंबर दिया है वी नीड टू रिप्रेजेंट दिस एज अ रैशनल नंबर. तो हाउ टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा 0.32 बार, दिस इज इक्वल टू 0.323232 डॉट 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 आएगा. यस, सो इसको हम यहां पे लिख सकते हैं एज सबसे पहले 0.32. यस, फिर आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 0. ये 2 0 आ जाएगा, फिर 32 प्लस ये हो जाएगा 0.000032 प्लस डॉट 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 डॉट. यस, सो यहां पे वी कैन से ये जो कंडीशन है हियर
T1 is equal to A is equal to 0.32. T2 is equal to 0.0032. T3 is equal to 0.000032. Forms a GP, yes, with A is equal to 0.32 and R is equal to, yes, ये हो जाएगा 0.0032 upon 0.32. The meaning of this is 32 upon 10 raised to 4 हो जाएगा, इधर डिवाइड बाई 32 अपॉन 10 का स्क्वायर हो जाएगा. यस, क्यों ऐसा? क्योंकि ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 32 अपॉन 10 रेज़ टू 4, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो अपॉन 10 स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस वैल्यू इज आर इक्वल टू, ये हो जाएगा 32 अपॉन 10 रेज़ टू 4. यस, डिवाइड को अगर इनटू लिखा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 10 स्क्वायर अपॉन 32. ये 32 गया, ये हो गया 10 स्क्वायर अपॉन 10 रेज़ टू 4, ये हो गया आर. आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 का स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 हो जाएगा. यस, तो मुझे इतना समझ में आ रहा है, आर इज इक्वल टू 0.01 आ गया. यस, नाउ सिंस दिस आर का वैल्यू इज दिस एंड ये डॉट 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 है. अच्छा, डॉट 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 मतलब क्या? कितने टर्म्स तो पता नहीं है, कितने टर्म्स नहीं पता, मतलब ये हो गया इनफाइनाइट टर्म्स. सो यहाँ पे here we need to find sum to infinity of a GP with A is equal to 0.32 एंड आर के जगह पे मैं लिख दूंगा मॉड्यूलस आर इज इक्वल टू 0.01. ए आर का वैल्यू 0.01 तो मॉड्यूलस आर भी 0.01 एंड दिस इज लेस देन 1, इसलिए सम टू इंफिनिटी एग्जिस्ट करेगा. एंड एग्जिस्ट करेगा तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एस इंफिनिटी इज इक्वल टू 1 सॉरी ए अपॉन 1 माइनस आर एंड दिस बिकम्स 32 अपॉन 1 माइनस, सॉरी 32 नहीं है, 0.32 है. यस, 32 नहीं, इट इज 0.32. ये रहा वैल्यू ऑफ ए एंड यहाँ पे 1 माइनस 0.01, सो ये हो जाएगा 0.32 अपॉन 0.99. सो ये भी पॉइंट हट गया, ये भी पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 99. एंड व्हाट इज दिस सम टू इंफिनिटी? तो एग्जैक्टली ये जो कंडीशन है, यस, वो ये है. सो उसकी जगह पे आई कैन राइट इट एज 0.32 के बाद बाहर साइड इज इक्वल टू 32 बाई 99. एंड क्वेश्चन में उन लोग ने बोला था एक्सप्रेस द रिकरिंग, क्या बोला है, डेसिमल एज अ रैशनल नंबर. यस, ये रिकरिंग डेसिमल था, उसको रैशनल नंबर, रैशनल नंबर मतलब अ नंबर ऑफ द फॉर्म p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. एंड इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि here we need to find sum to infinity of a GP with this condition, and sum to infinity exist कर रहा है किसके वजह से? क्योंकि मॉड्यूलस r is less than 1 एंड फिर ये कंडीशन यूज की. सो विद दिस द फर्स्ट सब क्वेश्चन इज डन. वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. Now we'll start with question number 2, sub question 2. Yes, the question is 3.5 and इसके ऊपर डॉट है. Yes, since ये सिंगल नंबर है इसलिए डॉट लिखा है. ये डॉट का मतलब भी क्या होता है? रिकरिंग टर्म. Since there is only one term इसलिए डॉट लिखा है, अदरवाइज बार लिखते हैं. So 3.5555 ये डॉट 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 आ जाएगा. सो वी कैन रिप्रेजेंट, यस, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि पॉइंट के बाद के जो डिजिट है वो रिपीट हो रहे, तो पॉइंट के पहले का डिजिट को सेपरेट कर दूंगा, तो इसको लिखूंगा 3 प्लस ए, अब मैं लिखूंगा 0.5555 डॉट 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 डॉट. सो द मीनिंग ऑफ दिस इज, इसको मैंने लिखा 3 प्लस, यस, इसको मैं लिख सकता हूं 0.5, उसके बाद मैं लिख सकता हूं 0.05, उसके बाद आएगा 0.005, उसके बाद आ जाएगा 0.0005 प्लस डॉट 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 डॉट.
मतलब मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में आया कि ये पॉइंट के पहले के नंबर को अगर अलग कर दिया तो उसको अलग से लिख दिया, और बचे हुए जो टर्म्स है यस, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे, हियर द टर्म्स आफ्टर द फर्स्ट टर्म forms a GP with T1, or we can say A is equal to 0.5 and R is equal to, yes, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ it is 0.05 upon 0.5 which is 5 upon 100 upon 5 upon 10. Yes, and based on this we can say R is equal to 5 by 100 हो जाएगा. ये डिवाइड को अगर इनटू लिखा तो ये 10 upon 5 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 by 10. So we have R is equal to 0.1 and यहाँ पे मैं लिखूंगा since modulus R is less than 1 therefore sum to infinity, yes मैं यहाँ पे पूरा कंडीशन लिखता हूँ, sum to infinity exists. Therefore, we have S infinity is equal to A upon 1 minus R. And what is this value equal to? तो A का जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगा? 0.5 upon 1 minus जो जाएगा 0.1. So this is 0.5 upon 0.9. Yes, and इसको मैं लिख सकता हूँ 5 by 9. And now since मैंने यहाँ पे लिखा है कंडीशन, here the terms after the first term forms a GP, मतलब इधर से लेके इधर तक का जो पार्ट है, इतना पार्ट, yes, इसको सॉल्व किया, उसका आंसर ये आया है. So here I will write therefore 3.5 बार, सॉरी डॉट है, डॉट बार नहीं है यहाँ पे, डॉट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 प्लस. अच्छा क्यों ऐसा लिखा 3 प्लस? क्योंकि मैंने here the terms after the first term forms the GP बोला है, मतलब ये 3 को छोड़ के बाकी के जो टर्म्स है वो GP फॉर्म हो रहा है, मतलब इतने पार्ट का सम टू इंफिनिटी का आंसर ये आया है. सो अब मैं इसको लिखूंगा 5 upon 9 एंड देन आई कैन से 3 into 9 plus 5 upon 9 आ जाएगा, which is 27 plus 5 by 9 which is 32 upon 9. ये है मेरा 3.5 dot का आंसर. So with this the second sub question is done. We make a note of this part. So now we start with the third sub question of this, जो है 4.18 बार. यस, इसका मतलब हो जाएगा 4.181818 डॉट 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 डॉट. सो यहाँ पे मुझे इतना समझ में आ रहा है, पॉइंट के बाद के डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं. सो पॉइंट के पहले के डिजिट को सेपरेट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 0 पॉइंट, यस पहले दो डिजिट के लिए 18 लिखूंगा, प्लस 0.00, यस अब आ जाएगा ये 18, प्लस अभी आ जाएगा 0.0000 और फिर आएगा 18, 0000 और फिर 18 डॉट 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 डॉट. सो वापिस से इतना समझ में आ रहा है, फर्स्ट टर्म को अगर मैं छोड़ दूं तो बचे हुए जो टर्म्स है यस ये फॉर्म हो रहा है मेरा जीपी. तो यहां पे मैं वापस लिखूंगा योर द टर्म्स आफ्टर द फर्स्ट टर्म फॉर्म्स अ जीपी विथ A is equal to T1 is equal to 0.18 and R is equal to 0.0018 upon 0.18. So this is 18 upon 10 raised to 4 upon 18 upon 10 square. So based on this we can say R is equal to ये हो जाएगा 18 upon 10 raised to 4,
ये डिवाइड को अगर इनटू लिखा तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर अपॉन 18, 18 गया, ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 स्क्वायर, ये हो गया r. सो r इज इक्वल टू 1 अपॉन 100. तो r का वैल्यू ये आ गया, तो वी कैन राइट इट इज 0.01. एंड यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मॉड्यूलस r इज लेस देन 1. एंड सिंस मॉड्यूलस r is less than 1, therefore sum to infinity exist. and ये exist करता है तो s infinity का फॉर्मूला है a upon 1 minus r. and based on this we can say a का वैल्यू क्या है, so it is 0.18 दिया है, it is 1 minus 0.01 which is 0.18 upon 0.99 जो जाएगा 18 upon 99. yes, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो पॉइंट हट गया. so we can reduce this to 9 2s and 9 11s. yes, ये आ गया. अच्छा, बट ये मुझे 2/11 ये आंसर मिला है मुझे इतने पार्ट को सॉल्व करके. yes, अभी भी ये 4 ऐड करना बाकी है. so now I will say now 4.18 बार इज इक्वल टू 4 प्लस ये हो जाएगा 2/11. यस, क्योंकि इतने पार्ट को सॉल्व किया, दिस इज माय सम टू इंफिनिटी का वैल्यू, एंड ये पार्ट का आंसर है 2/11, तो वो यहाँ पे लिखा. एंड अब आएगा एलसीएम विच इज 44 प्लस 2 अपॉन 11 विच इज 46/11 आ जाएगा. ये हो गया मेरा 4.18 बार. So with this, the third sub question is done. We make a note of this part. Now we start with the fourth sub question over here, and the fourth sub question is ये है 0.345 एंड उस खाली 4-5 के ऊपर बार साइन है. ठीक है, सो हियर वी राइट दिस एज 0.345. सिंस खाली 4 एंड 5 पे बार साइन है तो खाली 4-5 वाले जो टर्म्स है वो रिपीट हो रहे हैं. दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. यस, तो जो टर्म रिपीट हो रहे हैं उसके अलावा जो टर्म बचे हैं उसको अलग से सेपरेटली लिखेंगे. ये तो क्या बचा सेपरेटली, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इट इज 0.3 सेपरेट बच जाएगा, प्लस ये हो जाएगा मेरा 0.045 प्लस 0.00045 प्लस 0.0000045 प्लस डॉट 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 डॉट. इसका मतलब वापस मुझे यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट टर्म को अगर मैं छोड़ दूं तो बचे हुए जो टर्म है वो एक जीपी फॉर्म हो रहा है. सो यहाँ पे मैं वापस लिखूंगा योर द टर्म्स आफ्टर द फर्स्ट टर्म फॉर्म्स अ जीपी with a is equal to 0.3, sorry, with a is equal to 0.045. yes, ये काउंट करना है, ये नहीं लिखना है क्योंकि फर्स्ट टर्म के बाद के टर्म्स की बात कर रहे हैं हम लोग. एंड r is equal to 0.00045 upon 0.045. सो ये हो जाएगा 45 upon 10 raised to 5 upon 45 upon 10 का क्यूब. सो here we have r is equal to ये हो जाएगा 45 upon 10 raised to 5. yes, ये डिवाइड को अगर इनटू लिखा तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब अपॉन 45. ये और ये कैंसिल हो गया, ये 1 upon 10 स्क्वायर आ जाएगा. ये हो गया r is equal to 1 upon 100. r is equal to 0.01 आ गया. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंस मॉड्यूलस r इज लेस देन 1 देयरफॉर सम टू इंफिनिटी यस, यहाँ पे लिखूंगा एग्जिस्ट. एंड ये एग्जिस्ट करता है तो एस इंफिनिटी का फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस r. एंड a के जगह पे 0.00000
0.045 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस 0.01 आ जाएगा. So this value is equal to ये हो जाएगा मेरा 0.045 अपॉन 0.99. यस, तो इधर मुझे क्लियर कट दिख रहा है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है. तो आई विल राइट दिस एज 45 अपॉन 990. यस, एंड अगर मैं इसको प्रॉपरली कंसिडर करूं तो मुझे दिख रहा है 9 के टेबल में डिविजिबल है ये. 9 5 जा 9 1 1 0 जा एंड 5 1 जा एंड 5 22 जा. यस, ये हो गया मेरा सम टू इन्फिनिटी. अच्छा, इसका मतलब ये इतने पार्ट का आंसर हुआ, इतना ही पोर्शन. फर्स्ट टर्म को छोड़ने के बाद के पार्ट का आंसर है 1/22. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.345 और खाली 45 पे बार इज इक्वल टू 0.3 प्लस 1/22. एंड ये 0.3 को मैं लिखूंगा 3/10 प्लस 1/22. 10 एंड 22 अगर मैंने इसका एलसीएम कंसिडर किया सो ये हो जाएगा 0.345. यस, खाली 45 पे बार. द एलसीएम ऑफ दिस इज मैं लिख सकता हूँ 110. यस, या 220 लिखा तो भी चलेगा. अगर 110 लिखा तो ये 11 से मल्टीप्लाई होगा. ये 11 से मल्टीप्लाई हुआ मतलब 3 into 11 इज 33 हो जाएगा. प्लस मुझे मालूम है ये 22 into 5 किया तो 110 होता है, तो ये भी into 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा. सो दिस इज 38 अपॉन 110. यस, वी कैन स्टिल रिड्यूस दिस. ये हो जाएगा 19 अपॉन 55. सो ये हो गया 0.345 बार. सो विद दिस क्वेश्चन इज डन. वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. Now we have seen 4 sub question of question number 2. Yes, we have one more question. Yes, that you will do as homework and for your practice. That is 5th sub question, which is express the following recurring decimal as a rational number 3.456 बार. Yes, खाली 56 पे बार है मतलब 3.4565656 डॉट 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 आ जाएगा. And then you can write it as 3.4 को separate लिखो plus 0.056 plus 0.00056 plus 0.0000056 dot 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 dot. And then you will solve जैसे हमने इसके पहले का सम सॉल्व किया था वैसे. Now ये एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था and now we start with main question number 5 of exercise 4.3. The sum of the terms of an infinite GP is 5 and the sum of the squares of those terms is 15. Find the GP. Yes, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं let the required GP be, ये हो जाएगा A, AR square. यस, डॉट 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 आ जाएगा. सम टू इंफिनिटी, क्या बोला है? सम टू इंफिनिटी ऑफ दिस जीपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सो ये दिया उन लोग ने 5. यस, दिस वैल्यू इज गिवन एंड मुझे पता है एस इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर. यस, तो इसका वैल्यू 5 है इज इक्वल टू यहाँ पे a अपॉन 1 माइनस आर है. सो वी कैन राइट दिस एंड देन वी कैन से कि 5 into 1 minus r this is also equal to a, therefore a is equal to 5 into 1 minus r and इसको मैं मार्क कर दूंगा as what 1.
अच्छा, ये इसलिए किया क्योंकि मुझे आगे भी एक कंडीशन दिया गया है कि ऑल्सो द सम ऑफ द स्क्वायर्स, यस, तो यहां पे दिया है ऑल्सो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टर्म्स इज इक्वल टू 15। इसका मतलब क्या होता है? सम ऑफ द स्क्वायर्स इज, सम मतलब प्लस, सम ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर्स मतलब ये सारे नंबर्स का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर रेज टू 4 प्लस डॉट 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 आ जाएगा। यस, एंड ये वैल्यू इक्वल टू क्या दिया है उन लोग ने? दिस वैल्यू इज इक्वल टू 15। यस, अच्छा, इसका मतलब जब मेरा सम टू इंफिनिटी, जब ऐसा सीरीज होता है तो मेरा फॉर्मूला है a अपॉन 1 माइनस आर। सो इन दिस केस मेरा सम टू इंफिनिटी का वैल्यू इज इक्वल टू 15 है, एंड सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला फॉर दिस केस विल बिकम, मतलब मैंने क्या किया, इधर a था, यहाँ पे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लिखा, यहाँ पे r था मेरा कॉमन रेशियो का वैल्यू, यहाँ पे r स्क्वायर आ रहा है तो इधर r स्क्वायर लिखा। सो इन दिस केस ये हो जाएगा 15, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a को मैं लिख सकता हूँ a इंटू a अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस आर 1 प्लस r, एंड नाउ वी हैव दिस एज 15 इज इक्वल टू, ये a के जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1 माइनस आर, ये a के जगह पे भी मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1 माइनस आर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर। तो यहाँ पे ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 5 1s एंड दिस इज 5 3s आर। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर अपॉन में, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट 1 प्लस आर इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 1 माइनस आर, ये हो जाएगा 3 प्लस 3r इज इक्वल टू 5 माइनस 5r, 3r प्लस 5r इज इक्वल टू 5 माइनस 3, ये हो गया 8r इज इक्वल टू 2, तो r इज इक्वल टू 2 अपॉन 8, तो r इज इक्वल टू 1/4r। सो यहाँ पे मुझे वैल्यू ऑफ r मिल गया, वहां पे मेरे पास a का वैल्यू है, मैं बोलूंगा पुट r इज इक्वल टू 1/4 in 1, तो a इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 1 माइनस r, तो ये आएगा, सो 5 ब्रैकेट 4 माइनस 1 अपॉन 4 आ जाएगा। सो आंसर फॉर दिस पार्ट, दैट इज a के वैल्यू के लिए वी हैव इट एज 5 ब्रैकेट हो जाएगा 3/4, द मीनिंग ऑफ दिस इज 15 अपॉन 4 आ जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ a। ये मेरा a टर्म मिल गया, मतलब फर्स्ट टर्म मिल गया। अब मुझे ढूंढना है ए आर, ये मेरा सेकेंड टर्म है। यस, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड जीपी पूछा है। यस, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए तो मिल गया, अब a इंटू आर आएगा। व्हाट इज a इंटू आर? तो 15/4 इंटू आर का वैल्यू जो है 1/4, ये हो जाएगा 15/16, ए आर स्क्वायर। यस, तो ये होता है ए आर इंटू आर, इसका मतलब ये 15/16 हुआ इंटू 1/4, ये हो जाएगा 15/64। Therefore, the required GP is, तो ये हो जाएगा 15/4 कॉमा 15/16 कॉमा 15/64 कॉमा डॉट 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 डॉट। Yes, so with this question is done. We make a note of this part, and with this we also end the session over here. Please revise the concept of this session, that will help you to solve the questions that is based on homework. So we end the session over here. Thank you.